In our last session, we have discussed up to question number 50, 1 to 50. Now we will look forward for 51 to 100. Okay. The part 2 is relatively simple as compared to part 1 that we have seen yesterday. Here is our question number 51. It is about permaculture. Okay. Whenever we are reading some terms, especially in environment or economics, okay, note down its meaning. Okay, what is permaculture? What is silviculture? What is agroforestry? What is social forestry? इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो लाइक लॉन्ग टर्म रेपो, स्टैगफ्लेशन, ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं ना, इसके मीनिंग्स आपको पता रहना चाहिए. अगर मीनिंग पता है तो आंसर यहाँ पे टैकल हो जाए. Permaculture is nothing but sustainable agriculture, using sustainable practices, eco-friendly practices in agriculture. So whatever are the positive statement, that will be correct, and whichever is the negative statement, it will be incorrect. Okay, so now read statement one by one. Statement 1. Permaculture discourages monoculture, but in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. Okay, monoculture practices are predominant in conventional. It is correct. And permaculture will promote diverse cropping, multi-cropping. Then statement 2, conventional chemical farming can cause increase in soil salinity, but occurrence of such phenomena is not observed in permaculture. Because again, permaculture is going to have judicious use of water, fertilizer. So salinity issue will not be there. Okay. Second statement also correct. Third, conventional chemical farming is easily possible in semi-arid regions, but permaculture farming is not so easily possible in such regions. That is not the case. Whichever is the eco-friendly practice, it will be easily available in difficult conditions also. Okay. So chemical farming ultra difficult रहेगी because in chemical farming you need huge quantity of water. Okay. So the third statement will wrong. Again, first statement, practice of mulching. Mulching is covering with green cover, leaves or polythene of land is called as mulching. It is very important in permaculture farming, but not necessarily so in conventional chemical farming. Okay, mulching is a good practice, so इसका भी हम यूज करेंगे permaculture. Okay, अब हमारा काम क्या बनता है? अभी कुछ ऐसे और टर्म्स न्यूज में लाइक जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, एक हो गया. दूसरा था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF. ओके, तो उसका मीनिंग क्या रहता है ये पता रहना चाहिए. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ये दोनों का थोड़ा सा मीनिंग देख. ओके, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 52. इट इज अबाउट पाम ऑयल. पाम ऑयल जो हम फूड प्रोड्यूस ये कुकिंग के वक्त यूज करते हैं. द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. तो सब फैक्चुअल है. पाम ऑयल टील ये नेटिव है अफ्रीका का. ओके, हमको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि साउथ ईस्ट एशिया रहेगा क्योंकि हम इंडोनेशिया से, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं, बट इट इज नॉट द केस देयर. इट इज ओरिजिनली बिलोंग्स टू अफ्रीका. ओके, याद रखो. द पाम ऑयल इज द रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स. ओके, ऑयल वगैरह यूज होता है सिरेमिक्स, इस ब्यूटी इंडस्ट्री. थर्ड, palm oil can be used to produce biodiesel. Okay, palm oil oily है और बोला है can be. Okay, vague possibility. So it is correct. So यहाँ पर 2 and 3 correct है, 1 incorrect. 1 incorrect इसलिए क्योंकि native to Africa. Okay, South East Asia नहीं. ऐसे ही कुछ क्रॉप्स हैं लाइक टोबैको. इसका देख लेना, मतलब टोबैको कहाँ से आया? पुर्तगीज लेकर आए थे ब्राजील से वगैरह, तो वो भी एंडेमिक नहीं है. ऐसे ही आगे क्वेश्चन है टैमरिंड. टैमरिंड इमली जिसको कहते हैं. Okay, tamarind is also native to Africa. Okay, जो ऐसे डोमिनेंट स्पीशीज हैं जो हमारे पास हैं बट नॉट नेटिव टू इंडिया, वो हमको पता रहना चाहिए. ओके, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, वो आगे आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. इसको पढ़ लो. इट इज रिगार्डिंग इंडस रिवर सिस्टम. ओके, थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल भी है, सब्जेक्टिव भी है, कैसा आप देख सकते हो.
तो अगर इंडस के जो 4 ट्रिब्यूटरीज की हम बात करते हैं जो इंडिया से जाते हैं, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, यस तो इंडिया में मर्ज होती है सतलज को। तो यहाँ पर झेलम मर्ज होती है चिनाब को, फिर चिनाब मर्ज होती है रावी को, रावी मर्ज होंगी सतलज। पर जो इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब फ्लो जिसमें ज्यादा है वो चिनाब है। ओके, तो इसका आंसर चिनाब है। ओके, कुछ केस में ये भी दिया है, सतलज भी दिया है। सतलज इज लॉन्गेस्ट अगर ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट अगर बात करते हैं तो चिनाब है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द की में चिनाब आंसर दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, with reference to India, Didwana, Kuchaman, Sargol, Khatu are the names of, ये सारे के सारे सलाइन लेक्स हैं। ओके, ये कोई है क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ? खटू वगैरह, सरगोल, खटू पता नहीं, मुझको भी पता है पर खटू शायद कहीं पढ़ा हुआ था। तो सलाइन लेक्स है, थोड़ा सा याद रखो ऐसे टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इट इज अबाउट रिवर्स। 4 रिवर्स गिवन, ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा, वंशाधारा। विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट से कौन सा ओरिजिन होता है? देखो ईस्टर्न घाट क्या है, क्लोजर टू कोस्ट है, तो मतलब जो भी ओरिजिन हो रहे हैं वो दैट विल बी स्मॉल रिवर्स, नॉट बिग रिवर्स। अब हमको क्या करना है, इसमें से बड़े रिवर जस्ट एलिमिनेट कर दो। ओके, आप ये नीचे वाला मैप देखना, आपको समझ में आएगा। ये इंडिया के ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है ऑन पेनिनसुलर प्लेटू, लाइक दिस सुवर्ण रेखा, ये झारखंड में ओरिजिन हो रही है और फिर बे ऑफ बंगाल को जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, बड़ी रिवर है झारखंड में, मतलब पेनिनसुलर प्लेटू पे ओरिजिन हो रहा है, नॉट इन ईस्टर्न घाट। ओके, इट इज और नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये ऐड नहीं है पेज, ओके ठीक है, बाद में अपडेट किया हुआ था। ओके, तो सुवर्ण रेखा रिवर इंटीरियर से आ रही है, नॉट फ्रॉम ईस्टर्न घाट। सिमिलर इज केस ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण इज ऑल्सो लॉन्ग रिवर, इट इज नेशनल वाटरवे 5। ओके, यहाँ से जा रहा है, तो ये भी बड़ी रिवर है। इसके बाद जो दूसरे है वंशाधारा एंड नागवली। वंशाधारा इज ऑन बॉर्डर बिटवीन आंध्रा एंड ओडिशा, देयर इज बॉर्डर डिस्प्यूट। ओके, वंशाधारा एंड नागवली उसके पास ही है, ये भी ओडिशा से ओरिजिन होती है, फिर आंध्रा में चले जाती है। तो दो बोथ आर ओरिजिनेटिंग इन ईस्टर्न घाट्स, याद रखना। तो थोड़ा सा आप इसमें इलिमिनेशन से टेक्निक यूज कर सकते थे। सुवर्ण रेखा क्वाइट लॉन्ग है और ब्राह्मणी, दोनों को निकाल दिए तो आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 56। अब देखो यहाँ पर ये हमारा कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ओके, एक बॉडी बार बार न्यूज में रहती है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। जब भी हमको इंटरनेशनल वाटर में मिनरल्स एक्सप्लोर करना है, मतलब बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो तब ये बॉडी न्यूज में रहती है, तब ये बॉडी की परमिशन चाहिए रहती है। विजन के मंथली में वगैरह अक्सर ये दिया हुआ रहता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट 1, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। बॉडी का नाम कुछ दिया है और बोला है कि ये लाइसेंस देता है सीबेड एक्सप्लोर करने की। तो सीबेड एक्सप्लोर करने के लिए एक ही बॉडी है और वो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। सो स्टेटमेंट 1 विल बी रॉन्ग। ओके, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर, ये स्टेटमेंट सही है, इंडिया को मिला है अभी इंडियन ओशन में। थर्ड, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। सर ये पॉलीमेटेलिक नोडल्स वगैरह ऐसे कुछ टर्म्स यूज होते हैं वहां पर। तो ये सारे मिलते हैं क्योंकि ओशन 75%, मोर देन 75% लैंड ओशन है हमारा, तो वहां पर हर टाइप का मिनरल मिलेगा, रेयर अर्थ भी आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 2 एंड 3, याद रखना। नेक्स्ट 57, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट लेकिन वो एग्जाम प्रेशर में बच्चों ने इसको भी रॉन्ग कर दिया। क्वेश्चन में हमको पूछा गया 57 में, लिस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। ओके, अब वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लिस्ट भी बोल रहा है और वाटर एफिशिएंट भी बोल रहा है, किसको लेना है? ओके, तो इसका अपोजिट ले लो, लिस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब वाटर इनएफिशिएंट, जिसको बहुत ज्यादा पानी लग रहा है, सीधा सीधा वो पूछ रहा है। बहुत ज्यादा वाटर जो कंज्यूम करता है, इसमें से कौन है सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम करने वाला? इट इज शुगर केन।
ओके सिंपल था क्वेश्चन, बट लिस्ट और वाटर इफिशिएंट में बच्चे कंफ्यूज हो गए। ओके तो उसका अपोजिट लेना है, वाटर इनइफिशिएंट पूछा है, तो वो है हमारा शुगर केन। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। तो देखो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, टेक्निकल है क्वेश्चन। इसको देखो फर्स्ट राउंड में तो नहीं समझ में आएगा, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमको ओशन के करंट्स पता रहने चाहिए। ओके ओशन करंट से आप इसको गेस कर सकते हैं। इन ट्रॉपिकल जोन मतलब 0 to 30 डिग्री के बीच में ट्रॉपिकल, the western sections of oceans are warmer than eastern sections owing to influence of trade wind. Western sections warmer है compared to eastern section. इंडियन ओशन इमेजिन करो, नॉर्मली क्या रहता है, वेस्टर्न जो अफ्रीका का कोस्ट है वो वार्मर है और ईस्टर्न वाला क्या है, वो क्या है, कूलर है। आईओडी जो पढ़ते हैं पॉजिटिव आईओडी, ओके जनरली पॉजिटिव आईओडी रहता है, एक्सेप्शनल केसेस में निगेटिव रहता है। तो वार्मर क्या है, वेस्टर्न है, और कूलर क्या है, ईस्टर्न है। और किस वजह से है, ट्रेड विंड्स। जो हमारे विंड्स ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास जो विंड्स है जिनको हम ईस्टर्ली भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ट्रेड विंड की इंपैक्ट की वजह से, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड जो स्टेटमेंट पूछा गया हमको, इन टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशन वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शंस। टेम्परेट जोन, आप ऊपर आ जाओ 30 डिग्री के ऊपर, तो क्या हो रहा है, ईस्टर्न सेक्शन वार्मर है देन वेस्टर्न सेक्शंस। तो इसके लिए अगर हमको कुछ फ्लो पता है ओशंस के करंट्स के, लाइक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लाइक ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम यहाँ से आता है और ये वेस्टर्लीज है हमारे, ओके वेस्टर्ली वेस्ट साइड से आ रहा है, तो ये पुश करते हैं गल्फ स्ट्रीम को टुवर्ड्स यूके वगैरह, उसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये वार्मर है, इट इज वार्म करंट। तो वो क्या रहता है, वार्म रीजन रहता है, ईस्टर्न सेक्शन टेम्परेट रीजन, सो इट इज आल्सो करेक्ट। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट है। कंसेप्चुअल है, सेकंड राउंड में करो या थर्ड राउंड में करो या स्किप भी कर सकते हो, कंफ्यूज हो रहा है बहुत ही, स्किप भी कर सकते हो। ओके नहीं कर सकते, वो 2 में तो डाउट होगा ही, मतलब उतना ऑन द स्पॉट याद नहीं आता है सारी चीज। ओके तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 59, थोड़ा सा कोई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर है। क्लाइमेट स्मार्ट मतलब इसी को हम बोल सकते हैं क्लाइमेट रिजिलियंट। जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है तो इससे प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, पर हमको क्या करना है, उसको काउंटर करना है, प्रोडक्टिविटी हमारी मेंटेन करना है। तो उसके लिए बारे में ये पूरे स्टेटमेंट्स है, इसको रीड कर लो बस, ऑल द 3 आर करेक्ट, तीनों में भी फैक्ट्स यूज है। ओके तो ऐसे क्वेश्चन को बेटर रहता है स्किप करो, या इलिमिनेशन से आंसर आ रहा है तो निकाल दो। ओके उसको रॉन्ग ले सकता है, हाँ हमने भी रॉन्ग लिया, पर एक्चुअली इसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। डाउट हो रहा था कि हेडक्वार्टर फ्रांस में वगैरह नहीं रहेंगे, वो जो बॉडी वगैरह दिया है ना, जल्दी हेडक्वार्टर वगैरह वहां पे स्वैप करता है, पर यहाँ इस केस में ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर क्या पूछा गया है, लीफ लिटर। अब देखो जो क्लाइमेटिक रीजन्स हम पढ़ते हैं, कुछ 13 क्लाइमेटिक रीजन्स है वर्ल्ड में, जो जीसी लियोन की बुक में सेकंड हाफ में दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है, मैप देखना है और उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक मेडिटेरियन है, तो मेडिटेरियन में क्या रहता है, विंटर रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पर क्या रहेगा, ऑल ईयर राउंड रेन रहेगा, और रेन फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट रहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी तरीके से दूसरी भी जोन है, मेडिटेरियन मानसून है, ओके फिर हॉट डेजर्ट है, ग्रासलैंड्स है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर बोला है वो, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम। इससे क्या पता चलता है कि टेम्परेचर वहां पे वार्म रहना चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया ये डिकम्पोज करते हैं ना, बैक्टीरिया की ग्रोथ कब होती है, वार्म टेम्परेचर में, मतलब कोल्ड वाला नहीं रहेगा। ओके तो कोनिफेरस वगैरह वो आपका कट हो जाता है। As a result, the soil surface is often almost bare. Humans वहां पे कम है। Apart from trees, the vegetation is largely composed of plants. Forms that reach up to canopy vicariously
by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. ट्रीज बहुत ज्यादा है और क्या हो रहा है, कुछ ट्रीज नए ट्रीज ट्री के ब्रांच पर ही ग्रो कर रहे हैं. ओके, वो जमीन पर नहीं, ट्री के ब्रांच पर ही दूसरा ट्री ग्रो हो रहा है, उसको इपीफाइट कहते हैं. ऐसे टर्म भी पता रहना चाहिए, इपीफाइट. फिर वो मैंग्रोव के कंटेक्स्ट में न्यूमेटोफोर्स वगैरह ऐसे टर्म्स रहते हैं, उसकी मीनिंग हमको पता रहना चाहिए. तो इपीफाइट्स कब आते हैं, जब ग्राउंड पर आपकी सनरेज नहीं पहुंच रहे. ओके, तो ट्रीज क्या होते हैं, उधर ही मतलब वो ये होते हैं, ग्रो होते हैं, नए जो सीड्स रहते हैं ट्री के ब्रांच पर ही ग्रो हो रहे हैं. तो ऐसा होता है जो जहाँ पे सनरेज के लिए कंपटीशन है, ऐसा रीजन है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट रहता है, हाइट भी ज्यादा रहती है, तो सनरेज के लिए वहाँ पे कंपटीशन. ओके, तो इपीफाइट ये फिनोमेना वहां पर होता है, याद रखने से. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये हमारे ओशन करंट्स हैं, इसको भी अच्छे से देख लेना बाद में ये डायग्राम को. ओके, इसके बाद देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, सैवाना ग्रासलैंड्स के ऊपर है, और यहाँ पर बोला है कि ट्रीलेस ग्रासलैंड है, ट्रीज बहुत कम है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मतलब इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, ट्री ग्रो नहीं होने दे रहे, ट्री के ग्रोथ को प्रोहिबिट कर रहे हैं. ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमको पूछा गया था 2013 प्रीलिम्स. इसको रीड करो. In grassland, trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because of, okay, so insects, fungi, limited sunlight, paucity of nutrients, water limits and fire, none of those. तो यहाँ पर आंसर था उसका वाटर लिमिट्स. एक तो रेनफॉल कम है और दूसरा क्या है, फायर, फॉरेस्ट फायर वगैरह, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा. तो सिमिलर लाइंस में क्वेश्चन हमको पूछा गया था, 61 नंबर का क्वेश्चन. तो ट्रीज को लिमिट करने वाले फैक्टर्स कौन से, बरोइंग एनिमल, टर्माइट. देखो बरोइंग एनिमल्स वगैरह इनका रोल लिमिटेड रहता है, ये ज्यादा इतना डोमिनेंट फैक्टर नहीं है. ओके, फायर ये प्ले करेगा रोल. ग्रेजिंग हर्बियोर, क्योंकि जो सैवाना ग्रासलैंड है इनको बिग हंट कंट्रीज कहते हैं, यहाँ पर हर्बियोर्स वगैरह सारे एनिमल डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो ये फैक्टर भी करेगा उसको. तीसरा सीजनल रेनफॉल, ये भी है. सॉइल प्रॉपर्टीज उतना डोमिनेंट रोल नहीं है. ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा 2, 3 एंड 4 विल बी द आंसर. ओके, तो इसका जो ओरिजिन है ये अपना 13 का ये क्वेश्चन है. ओके, तो 13 के आगे के हमको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है. ओके, यूपीएससी पीवाई 13 ऑनवर्ड्स. नेक्स्ट 62, रिगार्डिंग वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग. ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है कि कहां पर सीक्वेंस पूछता है, कंपैरिजन पूछता है, कहां पर वाटर ज्यादा है कहां पर कम है. उसको याद कैसे रखना है, देखो ये हमारे पास चार्ट है. ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है वाटर ऑन अर्थ, 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी वाली जो है उसमें ये दिया हुआ है. ओके, सबसे ज्यादा वाटर है ओशन में, अराउंड 97.3%. 97.3% वाटर इज इन ओशन. ओके, और उसके बाद जो बचता है 2% वाटर है आइस कैप. मतलब फ्रेश वाटर, देखो टोटल फ्रेश वाटर 2.3% है, उसमें से 2% है आइस कैप, मीन्स फ्रोजन. सो अवेलेबल फ्रेश वाटर इज जस्ट 0.7%. अवेलेबल फ्रेश वाटर कितना है, 0.7%. अब इसमें सारा आएगा हमारा रिवर्स, ग्राउंड वाटर, सॉइल मॉइस्चर वगैरह. अब इसको याद कैसा रखना है, देखो आप क्या करो, इमेजिन करो ग्राउंड से लेके ऊपर हम जा रहे हैं स्काई में, तो सबसे पहले आएगा ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा है. ग्राउंड वाटर से पानी कहां पर जाता है, ग्राउंड वाटर से जाएगा लेक्स में. ओके, क्योंकि ग्राउंड वाटर से ही स्ट्रीम्स निकलते हैं, वो लेक्स में जाते हैं. तो ग्राउंड वाटर से वाटर सप्लाई होता है लेक्स. लेक्स से वाटर सप्लाई हो रहा है सॉइल को. सॉइल एकदम टॉप मोस्ट लेयर रहता है, सॉइल को जाएगा. सॉइल से वाटर जाएगा वेपराइजेशन होके एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा, क्लाउड्स बनेंगे, रेनफॉल होगा, और रेनफॉल से पानी जाएगा रिवर्स में. ओके, तो ऐसा सीक्वेंस है कि याद रखो. याद रखना कि ग्राउंड वाटर में ज्यादा वाटर है कंपैरेटिव टू रिवर्स. ओके, ग्राउंड वाटर, लेक्स, देन सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर से एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर,
और फिर एटमॉस्फेयर से रिवर्स। सीक्वेंस याद रखो। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, अब तुम आसानी से इसको टैकल कर सकते हो। 62 amount of water in the rivers and lakes is more than amount of groundwater. ओके, रिवर और लेक्स में ज्यादा है बोल रहा है ग्राउंड वाटर। अभी हमने देखा ग्राउंड वाटर में ज्यादा है। ओके, सो 1 is wrong. 2, amount of water in polar ice cap and glacier is more than amount of groundwater. आइस कैप में ज्यादा है, 2% is in ice cap. ओके, सो स्टेटमेंट 2 is correct, 1 is wrong. ठीक है, आगे समझ में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ओके, तो यहां पर देखो 5 स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चन में बस ये देखो कि कौन सा स्टेटमेंट हम इलिमिनेट कर सकते हो श्योरली। तो यहाँ पर पूछा गया है मोरिंगा, ये क्या है? ड्रम स्टिक है, इज अ लिग्यूमिनस ओवरग्रीन ट्री। ऐसा नाम से समझ में नहीं आएगा, पर आप इसकी अगर फोटो देखोगे ये मोरिंगा रहता है। इसको हमारे इधर शेवगा कहते हैं, आपके इधर क्या कहते हैं? ओके, अच्छा, ठीक है, तो हर रीजन में अपना अपना नाम रहता है। तो ये ट्री शेड करता है। अच्छा, ट्री ये क्या करेगा? लीव्स ये क्या करेगा? शेड करेगा। ओके, तो ये डेसिडियस है, नॉट एवरग्रीन। ओके, ओके, तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। ओके, तो मोरिंगा, मोरिंगा को ये ड्रम स्टिक हम कहते हैं। और याद रखना ये लिग्यूमिनस डेसिडियस है, इट इज डेसिडियस नॉट एवरग्रीन। सेकंड स्टेटमेंट, टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। टैमरिन ट्री देखो अगेन इट इज एंडेमिक टू अफ्रीका। जो कॉमन स्पेशीज हैं बर्ड्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, इनके बारे में हमको जानकारी रहना चाहिए। ओके, क्योंकि पूछ रहा है। अभी हमने देखा 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं। ओके, थर्ड, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट फूड्स। फॉरेस्ट में बहुत रहते हैं और एमएफपी है, ये सही है। फोर्थ, इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। एक्सपोर्ट तो हम करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ओके, टैमरिंड का आपके जो मुजीब सर हैं अभी, जिनका इनके पास खेत है ये टैमरिंड का, तो वो इसका एक्सपोर्ट करते हैं, हैदराबाद ही बेचते हैं उसको। तो वो थोड़ा पता था कि टैमरिंड हमारे पास सरप्लस है, एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, फिफ्थ, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। अगेन ये क्या है? बहुत ही जनरल है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैन बी बोला, ये सही रहना चाहिए। आप देखो फिफ्थ को अगर आप सही सपोज कर ले तो ए बी डी रहेगा। अब ए बी डी में से आपको 1 या 2 दोनों में से एक को इलिमिनेट कर दो तो आंसर आ जाता है। ओके, तो ये चीज समझ लेना, 3, 4, 5 विल बी द आंसर। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन, इट इज अबाउट सॉइल। सॉइल के टाइप हमको पता रहना चाहिए। ओके, सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से सॉइल का इंडिया में? एल्यूवियल सॉइल है। अब वो क्या बोलेगा पता है? एक स्टेप आगे जाके पूछेगा, एल्यूवियल सॉइल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ इंडियन सॉइल। अब सही है गलत है? इट इज रॉन्ग, मोर देन 50 नहीं है, लेस देन 50, 40 कुछ। सबसे ज्यादा एल्यूवियल, सेकंड आएगा रेड आता है, रेड आएगा। रेड मिलेगा तेलंगाना, कर्नाटक, साउथ में, आंध्रा हो गया। उसके बाद आएगा ब्लैक। ब्लैक थोड़ा सा अपर जो डेक्कन प्लेटू है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी का कुछ पार्ट। ओके, फिर ये 3 तो भी आप लोग याद रखो। उसके बाद आएगा फिर वो लैटेराइट सॉइल वगैरह, ये सारे आएंगे। ठीक है, तो हमको जो क्वेश्चन ये देखो मोर देन 50%, ये ट्रेडमार्क है यूपीएससी का। और एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था 2020 में, ग्राम्स के ऊपर, ग्रीन ग्राम कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ पल्स प्रोडक्शन इन इट, वो भी रॉन्ग था स्टेट। ओके, तो यहाँ पर हाँ, रॉन्ग जनरली रॉन्ग रहता है, इतना ज्यादा नहीं रहता अपने पास, डाइवर्सिटी बहुत है। ओके, तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। हाँ, यस, हाँ पूछिए। Sir, there is an audio and video problem from your side. ओके, ऑडियो वीडियो बराबर से नहीं सुनाई दे रहा है क्या? ओके, जी थोड़ा हाँ। सा। ओके, आप एग्जिट कर से फिर से लॉग इन कर सकते हैं,
नेट तो यहाँ पर ठीक से चल रहा है। ओके, Okay, sir. जस्ट एक बार लीव क्लॉज करके फिर से ज्वाइन कर ले, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया, तो देखो ब्लैक कॉटन सॉइल हमको पता है डेक्कन प्लेट्यू पे आती है, तो डेक्कन प्लेट्यू पे क्या है, बसाल्ट रॉक है। और बसाल्ट किससे बना, फिशर वोल्केनो। फिशर वोल्केनो जब हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अफ्रीका से यूरोप की तरफ आ रहा था, तब ये पास होता है फिशर वोल्केनो से। फिशर वोल्केनो का नाम क्या था, रियूनियन। तो तब ये पूरा बनता है, तो रियूनियन आइलैंड बसाल्ट बना, बसाल्ट का वियर एंड टियर होके रेगुर सॉइल बनी। ओके, तो ये वोल्केनिक सॉइल है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर पूछा गया हमको, recombinant vector vaccine consider the following. Genetic engineering is applied in the development of these vaccines. Okay, सही, genetic engineering तो यूज करेंगे recombinant technology. Bacteria and viruses are used as vectors. Okay, यूज कर सकते हैं, दोनों भी यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया, ई कोली वगैरह आप नाम सुने होंगे, दोनों को भी यूज किया जाता है। ओके, बोथ आर करेक्ट हियर। 66, यहाँ पर रिगार्डिंग हेरिडिटरी डिसीजेस के बारे में क्वेश्चन है। पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज मतलब ये 3 पेरेंट बेबी की बात कर रहा है। ओके, तो ये ट्रीटमेंट की जा सकती है बिफोर एंड आफ्टर इन विट्रो। अब की में वेरिएशन है, कुछ की के हिसाब से लाइक इनसाइट के हिसाब से वो बिफोर इन विट्रो कर सकते हैं। इन विट्रो मतलब फर्टिलाइज जो टेस्ट ट्यूब में करते हैं हम, एग और स्पर्म सेल का उसको फर्टिलाइजेशन, उसको इन विट्रो कहते हैं, आउटसाइड बॉडी। लेकिन उससे पहले कर सकते हैं ऐसे, मतलब इनसाइट के की हिसाब से। विजन के की के हिसाब से क्या है, मतलब उससे पहले तो कर ही सकते हैं, और उसके बाद भी अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी कर सकते हैं विजन के हिसाब से। ओके, तो वन स्टेटमेंट के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल आंसर तो हमको यूपीएससी की किसी पता चलेगा। ओके, अभी फिलहाल के लिए बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है। स्टेटमेंट 2 देखो, यहाँ पर करेक्ट है, चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। ये सही है, माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसीज रहते हैं मदर से इनहेरिट होते हैं। ओके, इसलिए मदर के माइटोकॉन्ड्रियल वो रिप्लेस किए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसको याद रखना, 3 पेरेंट बेबी। इससे इससे पहले पिछले साल ही एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रो न्यूक्लियस ट्रांसफर किसको कहते हैं, प्रो न्यूक्लियस ट्रांसफर। अगेन वो फिर से 3 पेरेंट बेबी का एक दूसरा नाम है, प्रो न्यूक्लियस ट्रांसफर। मतलब एक हेल्थी न्यूक्लियस लेते हैं, मतलब प्रो न्यूक्लियस में क्या करेंगे, जो मदर का न्यूक्लियस है वो ट्रांसफर करते हैं हेल्थी डोनर सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया डोनर सेल के रहेंगे और न्यूक्लियस मदर का रहेगा, ठीक है। 67, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो ये है बीटी कॉटन, कॉटन की जो जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटीज है ना, उसकी टेक्नोलॉजी है बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2। ओके, इसको याद रखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड। साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझ में आएगा, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक। नए बायोटेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ओके, अभी फिलहाल जैसा क्रिस्पर कैस9 कंटिन्यू 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, अब वैसे और उससे रिलेटेड रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं ये हमको देखना है। फिर जो अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लें। फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। 68 क्वेश्चन, in pressure cooker the temperature at which the food is cooked depends mainly upon the following. प्रेशर कुकर में जो फूड कुक हो रहा है तो ये किस पे डिपेंड करता है, मेनली अपॉन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी देखो 3 चीजें दी गई है, एरिया ऑफ द होल इन द लीड, जो सिटी रहती है एरिया ऑफ द होल होल रहता है उसके ऊपर, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लीड। ओके, अब यहाँ पर जो विजन के की के हिसाब से क्या है कि जो टेम्परेचर ऑफ फ्लेम है वो रोल नहीं प्ले करता। आप
rather than temperature of flame, वो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर कितना एक्ट हो रहा है फूड के ऊपर वो रोल प्ले करेगा। फ्लेम का टेम्परेचर मैटर नहीं करता है। ओके, फ्लेम मतलब जिससे आप हीट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, आप स्लो भी हीट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, फास्ट हीट कर रहे हैं तो कम टाइम लेगा। ओके, पर वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो इनक्लोज चेंबर के अंदर फूड पे आपके, तो वो रोल प्ले करता है। तो फ्लेम नहीं आता है, एरिया ऑफ होल मैटर करता है और वेट ऑफ द लीड। ओके, ये दो मैटर करते हैं और ये शायद बहुत कब जमाने पहले पीवाईक्यू में पूछा गया था, कुछ तो भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है, इंजीनियर्स मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह उसको सॉल्व कर सकते हैं, पर हमको लगा था टेम्परेचर ऑफ फ्लेम रहेगा, पर वो नहीं है। ओके, वो रोल प्ले नहीं कर रहा। कुछ की हिसाब में दिया भी है ना, हाँ 1 और 2 भी दिया है, वेट ऑफ लीड नहीं दिया है। वेट ऑफ लीड वैसे उतना मैटर नहीं करना चाहिए, वो बस किस लिए वेट ऑफ लीड, लीड किस लिए रहता है कि एयर ट्रैप करना है, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए लीड हम यूज करते हैं, उसको रिंग भी यूज करते हो, फाइबर की रिंग। ठीक है, तो 1 और 2 कुछ की में दिया है, कुछ की में 1 और 3 दिया है। अभी सब्जेक्टेड टू अब यूपीएससी की है, वही इसको फाइनल करेंगे। ठीक है, तो इस पे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बस इसको पढ़ लो छोड़ दो। 69 अगेन ये फिर से यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसका आंसर के बारे में। 3 स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया, फंगाई और वायरस, और पूछा गया है विच ऑफ द अबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। तो कहाँ में यूज होता है, तो कौन आर्टिफिशियल मीडियम से इसको बनाया जा सकता है। तो विजन के हिसाब से बैक्टीरिया और फंगाई हम कर सकते हैं, और इनसाइड क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया, फंगाई एज वेल एज वायरस, इनको हम सिंथेटिक मीडियम में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या आपका क्या ओपिनियन, मतलब फार्मेसी के हिसाब से? ऑल ऑफ द अबव। ओके, वायरस अब देखो सिंथेटिक होस्ट भी रह सकता है, होस्ट होस्ट नेचुरल सिंथेटिक भी रह सकता है ना। ओके, हाँ वीकन वैक्सीन वगैरह जब बनाते हैं तब, बराबर है। ओके, पीसीआर टेक्निक आपने सुना है? हाँ हाँ, चाइना को ब्लेम किया जाता है कि कोरोना वायरस उसने लैब में बनाया। तो देखो ऑल ऑफ दिस ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ऑल ऑफ दिस रहेगा, पर अब फाइनल डिसीजन यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखो अगेन ये थोड़ा सा बायो रिलेटेड डिसीज, डिसीज वाला पार्ट भी हमको अच्छे करना है। जो डोमिनेंट डिसीजेस हैं, ध्यान दो यहाँ पर, जो डोमिनेंट मतलब मेजर डिसीजेस हैं बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल, लाइक HIV है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ओके, जापानीज इंसेफेलाइटिस, फिर जो हमारे मिशन इंद्रधनुष में जो डिसीजेस हैं, ये डिसीजेस, तो इनके हमको क्या पता रहना चाहिए, बैक्टीरियल है या वायरल है। ओके, इतना भी पता है तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। यहाँ पर HIV के ऊपर है, एडिनोवायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड रेट्रोवायरस हैव डबल स्टैंडर्ड DNA। ऐसा नहीं रहता है, देखो सिंगल स्टैंडर्ड DNA कभी सुना है, DNA सिंगल स्टैंडर्ड रहता है कि डबल रहता है? डबल रहता है, स्टेटमेंट वन रॉन्ग होगा। फिर और दूसरा और क्या है, रेट्रोवायरस में क्या रहता है, RNA रहता है। रेट्रोवायरस HIV का जो वायरस रहता है वो रेट्रोवायरस रहता है, रेट्रोवायरस में RNA रहेगा, और एडिनोवायरस में DNA रहता है। DNA डबल स्टैंडर्ड और RNA सिंगल स्टैंडर्ड रहता है ना मुजम्मिल? RNA सिंगल स्टैंडर्ड रहता है ना। और जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एन एडिनोवायरस whereas AIDS is caused by retrovirus, ये स्टेटमेंट सही। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडिनोवायरस और रेट्रोवायरस, कुछ इसमें मतलब? हाँ, एडिनोवायरस, ठीक है, तो ये थोड़ा समझ लो, एडिनोवायरस में DNA रहता है और रेट्रोवायरस में RNA रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71,
water can dissolve more substances than any other liquid because ये हमने 11th-12th में पढ़ा था, केमिस्ट्री में रहता है। वाटर क्या है, पोलर कंपाउंड है, H2O है, H प्लस और OH माइनस, तो इसमें क्या है, पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जितने भी पोलर कंपाउंड रहेंगे वो उसमें सोल्यूबल रहते हैं। ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए ऑयल सोल्यूबल नहीं रहता है। ओके, ऑयल आप कोकोनट ऑयल वगैरह पानी में पोर कर दो या क्रूड ऑयल, वो ऊपर तैरेगा, ओके, मिक्स नहीं होता है क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है। बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर इन नेचर पोलर, सो वाटर में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड सोल्यूबल रहते हैं। जैसा हमारा शुगर है, साल्ट है, ओके, साल्ट NaCl, Na प्लस रहता है, Cl माइनस रहता है, डिफरेंस रहता है, तो वो क्या होगा, सोल्यूबल रहेगा, याद रखना। 72, सोडियम लैंप और LED लैंप दोनों में डिफरेंस पूछा है। आपने सोडियम लैंप देखा होगा, फोकस जो हम जिसको फोकस कहते हैं, बीच में एक छोटा सा ट्यूब रहेगा, सोडियम वेपर लैंप ट्यूब रहता है और वो 360 डिग्री में लाइट प्रोजेक्ट करता है। ओके, तो LED में 360 डिग्री नहीं है, सोडियम वेपर लैंप में वो है। ठीक है, इतना एक चीज याद रखो। बाकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा LED लैंप की रहती है और जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो भी LED की ज्यादा है। ओके, स्टेटमेंट 1 में कंफ्यूजन हो सकता है बट वो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आंसर है आपका 1 and 3। ठीक है, लाइफ स्पैन LED लैंप का ज्यादा रहता है, LED लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे टर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के रखो। सेमीकंडक्टर्स, LED, फिर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स। ओके, इसके बारे में हमको पता रहना चाहिए ये काम कैसा करता है। नेक्स्ट, ACE2 is talked about in the context of ACE2। ACE2 अभी कोरोना के ऊपर था। ओके, ACE2 क्या रहता है, ये इंजाइम है, हमारी स्किन में रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन सेल्स के ऊपर रहता है। ACE2 which acts as a receptor that enables SARS-CoV-2 to launch its attacks। ये जो रिसीव करता है COVID-19 वायरस को, हमारी ह्यूमन सेल्स पर रहता है। ACE2 ये इंजाइम है, ये COVID-19 कोरोना वायरस को क्या करेगा, रिसीव करेगा, सेल के अंदर लेकर जाता है उसको, सेल में जाने के बाद वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ACE2 क्या था, इट इज रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ वायरल डिसीज। ओके, ACE2 याद रखो। नेक्स्ट, 74, bisphenol, a cause of cancer, is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastic। सारे ऑप्शन सिमिलर ही दिख रहे हैं, तो ठीक है, इसको जमता है तो करता, नहीं तो स्किप करना। वैसे इसका आंसर है बिस्फेनॉल, एक आंसर है पॉलीकार्बोनेट। ओके, ये पॉलीकार्बोनेट में ये कुछ यूज करते हैं। प्लास्टिक में थोड़ा सा एक याद रखो, दो टाइप के प्लास्टिक रहते हैं, एक थर्मोसेट रहते हैं और एक थर्मोप्लास्ट। ओके, थर्मोसेट मतलब टेम्परेचर कितना भी बड़ा करो उसमें चेंज नहीं होता है, वो वैसा ही शेप एज इट इज रहे। बैकलाइट, which this, ओके, हाँ, थर्मोसेट तो फिक्स रहेगा। हाँ हाँ, बॉइल, तो दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, PYQ भी है, वो हमको पता रहना चाहिए। उसके दो एग्जांपल, थर्मोसेट 2 एग्जांपल, थर्मोप्लास्ट 2 एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो करना, नहीं तो छोड़ देना है। ट्राइक्लोजॉन के ऊपर पूछा है, इट इज अ हार्मफुल compound exposed to high level for a long time is most likely present in which of the following? Triclosan. It is actually an antimicrobial product used to increase shelf life of a product. ये यूज होता है टॉयलेटरी कमोडिटीज, तो ये क्या रहता है, जैसा हैंड सोप है, कॉस्मेटिक, इनका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ट्राइक्लोजॉन यूज होता है। ओके, पता है तो अटेम्प्ट करना है, नहीं तो इसको क्या करना है, स्किप करना है। ओके, 76, which of the following is the reason why
astronomical distances are measured in light years. Okay, क्योंकि लाइट का क्या है, स्पीड कांस्टेंट रहता है. स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम, याद रखो. When it is flowing through vacuum, speed of light is always the same. Next, question number 77. From here we have polity questions. Okay, try to देखो polity में हम पूरा all correct भी कर सकते हैं. Okay, बस वहां पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को गौर से देखना है. पूरा यहाँ पे 100% एक्यूरेसी हम ला सकते हैं. ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेक्शन रहता है हमारा, तो इसमें मिस्टेक्स नहीं करना. तो 77 रीड करो. We adapted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that? UK. As regard legislation, British Parliament is supreme or sovereign, but in India the power of Parliament to legislate is limited. Okay, क्योंकि हमारे पास क्या है, judicial review, fundamental rights, separation of power. Okay, so क्या है, Parliament की power limited है. In Britain क्या है, parliamentary sovereignty. वहां पर जुडिशियल रिव्यू, मतलब वहां पर क्या है, पार्लियामेंट कोई भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है. इट कैन नॉट बी क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. स्टेटमेंट 2, इन इंडिया द मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेस सेटअप बाय सुप्रीम कोर्ट. जो आर्टिकल हमारा 13 है कि कोई भी अगर एक्ट है, अमेंडमेंट है, अगर वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, तो उसको इट कैन बी चैलेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द कोर्ट. ओके, सो इट इज आल्सो करेक्ट. सो ये दोनों भी डिफरेंसेस है. सो हियर आंसर इज बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 78. ओके, यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट है. ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है और एकदम पुराना है. ओके, तो ये क्या बोल रहा है, एन गोपाल स्वामी आयंगर कमिटी suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. अभी गड़बड़ मत करो, स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लो पहले. In 1970, the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission 1966, and this was placed under the Prime Minister charge. तो यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. जो गोपाल स्वामी आयंगर कमेटी बोल रहा है ना, सजेस्टेड, उसने सजेस्ट नहीं किया था वो फर्स्ट वाला, ये सजेस्ट किया था फर्स्ट एआरसी ने, जो कि नीचे दिया है. फर्स्ट एआरसी ने सजेशन दिया था कि एक मिनिस्टर और सेक्रेटरी रहना चाहिए एआरसी के लिए. तो यहाँ पर आयंगर कमेटी नहीं थी, यहाँ पर था फर्स्ट एआरसी. ओके, और सेकंड स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, मतलब आधा सही है आधा गलत है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया 1970 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट एआरसी, बट इट वाज हियर इट इज गिवन इट वाज प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज, नॉट पीएम चार्ज. इट वाज प्लेस्ड अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी. बहुत ही फैक्चुअल है, स्किप कर सकते हैं. ओके, नहीं पता है स्किप कर दो. ओके, दोनों क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स हैं स्टेटमेंट्स में, इसको समझ लें. फर्स्ट एआरसी कब आया था, 1966. ओके, एंड हु वाज द चेयरमैन? फर्स्ट एआरसी चेयरमैन वाज Morarji Desai, later replaced by Hanumanthayya. Then when was second ARC came? 2004-5 something. Okay, and it was headed by Veerappa Moily. Okay. जो स्टूडेंट ऑनलाइन है उनको आवाज आ रहा है? Yes, sir. आ रहा सर. ठीक. Now question number 79. Okay, simple question. ये आना चाहिए हमको. Right to privacy is protected under which article of the Constitution? Okay, Article 21. Right to privacy. Justice ये पुट्टास्वामी judgment. याद रखना. Right to privacy. Okay. हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 we were discussing. In India, there is no law
restricting the candidates from contesting one Lok Sabha election from 3 constituency. अभी आपने सुना होगा ज्यादा से ज्यादा 2 में कंस्टिट्यूट कर सकते हैं. इसका मतलब कोई तो भी लॉ तो होगा ही जिसने उसको मतलब जिसके अंडर में उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया. मतलब 3 जगह से आप कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते हो. ओके, सो इट इज अंडर आरपीए. ओके, आरपीए हमारे पास लॉ है. तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाए. वो बोल रहा है कोई भी लॉ नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करता है कंटेस्टिंग फ्रॉम 3 कंस्टिट्यूएंसी. ठीक है, 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कंस्टिट्यूएंसी. अभी मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से आप कंटेस्ट कर सकता है, नॉट 3. तो यहाँ पर ये गलत होगा. लॉ हमारे पास है. सेकंड, लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी. रह भी सकता है, नहीं भी, पहले हो भी सकता है, अभी हमको श्योर नहीं. स्टेटमेंट 3 हम रीड करते हैं पहले. एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituency, his or her party should bear the cost of by-election to the constituency vacated by him in the event of him winning all the constituency. अगर कोई सपोज मोदी जी खड़े थे, वाराणसी से भी थे और अहमदाबाद से थे ना, 2 सीट से थे. ओके, तो अगर दोनों में भी जीत जाते हैं तो एक पे वैकेट करना होगा. जो वैकेट कर रहे हैं तो वहां का एक्सपेंडिचर बीजेपी उठा रही है. तो ऐसा सुना है कभी आपने? कभी पार्टी एक्सपेंसेस नहीं उठाती, एक्सपेंसेस ईसीआई करेगा, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा. ओके, तो यहाँ पर थर्ड रॉन्ग हो रहा है. ओके, देखो थर्ड रॉन्ग हो रहा है तो बचता है 1 and 2. ओके, और 1 and 2 में मतलब 1 भी रॉन्ग है क्योंकि लिमिट जो है 2 का है और एक्ट भी है हमारे पास आरपी. तो आंसर इसका आएगा 2 ओनली. तो इसको हम इलिमिनेशन से कर सकते हैं, याद रखो. इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 81. एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये राइट टू सिटी. ओके, ये कंटेक्स्ट में. तो यहाँ पर देखो इलिमिनेशन से हम इसको कर सकते हैं. बस इसमें एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको ढूंढना है और निकाल देना. तो आप उसको रीड करो और मुझको बताओ एक्सट्रीम स्टेटमेंट मतलब कौन सा है इसमें. ओके, कौन सा है, कहां पर एग्जैगरेशन है या ज्यादा बोला गया है? थर्ड स्टेटमेंट दिख रहा है ना, अनऑथोराइज कॉलोनीज हैं और उनको भी डिनाई नहीं कर सकता, तो ये ज्यादा हो गया मतलब. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप थर्ड को इलिमिनेट कर दो तो 2 बचते हैं, 1 and 2. ओके, और जो 2 है जनरल स्टेटमेंट है, वेरी मच पॉजिटिव स्टेटमेंट. ओके, एक्सट्रीम वगैरह कुछ नहीं, जनरल पॉजिटिव स्टेटमेंट. तो 2 भी आपका सही है. आंसर विल बी 1 and 2, याद रखो. 82. देखो आप, ये क्वेश्चंस ऐसे है ना, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी पढ़ते हम कि मतलब नवाब मलिक को पुलिस कस्टडी हो गई, जुडिशियल कस्टडी हो गई. ओके, तो इसके मीनिंग यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन क्या है, जो आप रीड कर रहे हो उसके मीनिंग आपको पता रहना चाहिए. पुलिस कस्टडी क्या रहता है, जुडिशियल कस्टडी क्या रहता है, क्वेश्चन उस पे आ गया. जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है, प्रिजन में रखते हैं और अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना, पुलिस के इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना है तो जुडिशरी का परमिशन लेके आपको वहां पे जाके पूछताछ करना. पुलिस कस्टडी में आपको थाना में ही रखते हैं, लॉकअप. तो उसमें क्या होता है, पुलिस को परमिशन की जरूरत नहीं रहती और यहाँ पर टॉर्चर के जो केसेस होते हैं ना, वो ज्यादा होते हैं पुलिस कस्टडी में. पुलिस कभी पुलिस कस्टडी की डिमांड कर, याद रखना. तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 1, जुडिशियल कस्टडी मीन्स accused is in custody of concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. तो उसको क्या करते हैं, accused को कहां पे रखते हैं, पुलिस स्टेशन, नॉट इन जेल. जेल में रखते हैं, पुलिस स्टेशन में नहीं. ओके, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है. सेकंड, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ कोर्ट. के अप्रूवल से वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट ओनली 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग. ओके, सिमिलर, ऑन सिमिलर लाइन ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया पैरोल पे. हम पढ़ते हैं पैरोल, फरलो, ये भी मतलब प्रिजन उससे रिलेटेड है. तो यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 83 में, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन बी डिनाइड टू सच अ प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स
Parole cannot be denied to such a prisoner because it become a matter of his her right. Parole कभी भी right नहीं रहता है. अच्छे कंडक्ट पे, गुड कंडक्ट पे उसको दे सकते हैं पैरोल वगैरह, ओके, पर इट इज नॉट अ राइट. सो ये रॉन्ग हो गया, एक्सट्रीम होता है. सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स. पैरोल के अपने अपने रूल्स रहते हैं, क्योंकि प्रिजन वगैरह ये क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट है. तो स्टेटमेंट 2 सही है. ऐसा एक रहता है फरलो. बहुत ही एक 10-12 साल से आप जेल में है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि बहुत बोर हो गए आप, कुछ दिन घर पे रह के आ जाओ, तो उसको फरलो मतलब बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ टाइम आपने अमाउंट स्पेंड किया, फिर आप गवर्नमेंट कुछ दिन के लिए आपको छुट्टी दे. और पैरोल मतलब आपका कंडक्ट वगैरह अच्छा है तो आपको कुछ दिन के लिए मतलब छुट्टी पे दे रहे हैं, पैरोल. ओके. 84 रीड कर लो. ओके. FRA एक्ट बहुत ही फेमस है. इसमें ट्राइबल्स को क्या दे रहे हैं हम, लैंड राइट्स दे रहे हैं. फर्स्ट टाइम लैंड राइट्स दिए गए ट्राइबल्स को, ओके, FRA के अंडर. और ये एडमिनिस्टर करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ओके, याद रखो. ऐसे एक एक्ट है पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू पेसा एक्ट. इसको लाया गया था, जो पंचायत राज है उसको एक्सटेंड करना है शेड्यूल 5 एरियाज में. तो ये कौन से मिनिस्ट्री में है, पेसा एक्ट, बताइए. पेसा एक्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज. हाँ, पेसा इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, नॉट ट्राइबल, याद रखो. और इसी तरीके से देखो, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के डिफरेंसेस हमको पता रहना चाहिए. शेड्यूल 5 दोनों भी ट्राइबल्स के लिए है, लेकिन शेड्यूल 6 वाले जो ट्राइब है वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है शेड्यूल 5 के कंपैरिजन. ओके, जो शेड्यूल 5 है 10 स्टेट में है, शेड्यूल 6 जो है 4 स्टेट में, और पूरे 4 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के. ओके, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये है शेड्यूल 6. शेड्यूल 6 में पावर बहुत ज्यादा दी गई है. शेड्यूल 6 एरियाज में पावर, ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा है. वहां पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल. ओके, उनको लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, पूरी पावर है. लेकिन शेड्यूल 5 जो एरियाज है वहां पर क्या रहता है, बस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रहती है. एडवाइजरी मींस वो बस एडवाइस कर सकते हैं गवर्नमेंट. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें 20 मेंबर्स रहते हैं. और जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां पर 30 मेंबर्स, 26 आर इलेक्टेड, 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. ओके, और इसी तरीके से जो शेड्यूल 5 एरियाज है वो डिक्लेयर करता है आपका प्रेसिडेंट करता है, और शेड्यूल 6 है वो गवर्नर डिक्लेयर करता है, मतलब बाउंड्रीज वगैरह अल्टर करता है. ओके, तो ये जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार. दोनों के डिफरेंसेस, पावर और कमिटी गवर्नेंस कैसे होता है. 85 देखो, इसको पढ़ लो पहले, थोड़ा सा समझना है, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, 1-2 बार रीड करे तो तब समझ में आ जाएगा. ओके, वो क्या बोल रहा है, सीधा सीधा गवर्नमेंट को पावर है जिस पर चाहे लॉ अपने तरीके से लगाए. मतलब किसी को किसी को क्या कहते, कोई एक क्राइम किसी ने किया, एक कोई पर्टिकुलर अपर कास्ट का है उसको पेनाल्टी कम दे दी है, लोअर कास्ट का है उसको पेनाल्टी ज्यादा दे दी है, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन डिस्क्रिशन हो रहा है. तो इट इज द वायलेशन ऑफ विच आर्टिकल पूछा. तो ये क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ
अनइक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, इसका वायलेशन। सो ये आर्टिकल हमारा क्या है 14। नहीं समझ रहा है तो हिंदी वाला ट्रांसलेशन थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। ओके, तो इसको देख लो, हिंदी भी नहीं समझता है। ओके, साउथ के स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत होती है, चलो इंग्लिश अच्छा कर ले, ठीक है। 86, which of the following in Indian polity is an essential feature that indicate that it is a federal in character? फेडरल मतलब क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों में डिवीजन ऑफ पावर है, और वहां पर कुछ ऐसी मशीनरी है जो ये बैलेंस को मेंटेन रखती है। ओके, इसको इसको कहते हैं फेडरलिज्म। जैसे हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने बराबर डिफाइन किया पावर को, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो ये पूछा है ऐसे बताओ और क्या चीजें हैं जो फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करो, इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी इज सेफगार्डेड। अगर ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट, ये बहुत जरूरी है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो सेंटर और स्टेट का कोई मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट, और अगर सपोज वो सेंटर के फेवर में है तो क्या होगा, अगेंस्ट फेडरलिज्म, फेडरल स्पिरिट हो जाए। सो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है, याद रखना। अब इसको फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल, क्या पूछेगा, आर्टिकल 131 पूछेगा। किस लिए आर्टिकल 130? इट इज अबाउट ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या बताया गया है, सेंटर स्टेट, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट, या सेंटर एंड स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट, ऐसा अगर डिस्प्यूट है तो डायरेक्टली आपको कहां जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखना। 131। 87, ओके, देखो यहां पर जो क्वेश्चन है हमको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। देखो सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट नहीं पूछा, बेस्ट डिफाइन स्टेट। ओके, तो देखो अब स्टेट, कोई भी जो स्टेट रहता है, चार चीजें रहती है स्टेट जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स में स्टेट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक रहता है पॉपुलेशन रहना चाहिए, दूसरा टेरिटरी रहना चाहिए, तीसरा गवर्नमेंट रहना चाहिए, फोर्थ सॉवरेनिटी रहना चाहिए। पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, अगर ये चार चीजें हैं तो उसको हम स्टेट कहते हैं। अगर आप स्टेटमेंट ए रीड करते हो और बी रीड करते हो तो क्या है, वहां पे दोनों भी है। पढ़ लो आप उसको, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। सर हाँ हाँ, पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 86 में स्टेटमेंट बी क्यों रॉन्ग है सर? ओके ओके, स्टेटमेंट 86, क्वेश्चन 86 बी, इसको 87 के बाद डिस्कस करते हैं। ओके, जस्ट वेट ओके फॉर 1 ओके मिनट, को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ए और बी को रीड कर लो। तो यहाँ पर दोनों भी आंसर है, विजन के हिसाब से आंसर आपका ए है। ए में चारों चीजें इनकम पास हो रही है। इनसाइड के हिसाब से स्टेटमेंट बी है, बी में क्या है, चारों चीजें भी है प्लस थोड़े से एक्स्ट्रा भी चीजें। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन स्टेट। बेस्ट टाइप में तो मतलब यहाँ पे स्कोप है थोड़ा सा आगे जाके, मोर पॉजिटिव। तो ऐसा देखा जाए तो बी, इन माय ओपिनियन बी थोड़ा सा करीब है, क्योंकि बी ज्यादा और वेलफेयरिस्टिक की तरफ जा रहा है, मोर ब्रॉडर डेफिनेशन है, क्योंकि स्टेट ने ये सारी चीजें भी करना चाहिए, पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो यूपीएससी जनरली क्या करता है पता है, थोड़ा सा नैरो से ज्यादा ब्रॉडर को सेलेक्ट करता है, प्रिफर करता है। ओके, हाँ हाँ, सॉवरेनिटी, हाँ सॉवरेनिटी, यस। ओके, देखो सॉवरेनिटी मतलब सॉवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये आप सही बोल रहे हैं। बट देखो ऐसा थोड़ा सा कंपेयर करो, मेन थीम देखो उसकी, मतलब जैसा बोल रहा अथॉरिटी टू गवर्न है, मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वहां पे। हाँ हाँ, नेशन, अच्छा, यहाँ पर देखो
सॉवर्निटी देखो दिया, मतलब अगर वो बोलता कि ओनली ये चीजें रहना चाहिए, ऐसा उसने स्पेसिफिक बताया नहीं है। तो देखो आप जैसा बोल रहे हो वो सही भी रह सकता है, ये रॉन्ग भी रह सकता है, सही भी रह सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा एक ब्रॉडर थीम देखा जाए कि स्टेट क्या रहना चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर डिफाइन किया है बी ने। ओके, ए में क्या है, ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है वो है, ए में पूरे सब फुलफिल हो रहा है। बी में क्या है, थोड़ा सा एक कदम आगे जाके कुछ पॉजिटिविटी चीजें। अब क्या है, अब तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यूपीएससी क्या कहता है। ओके, तो ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है, कोई बात नहीं। ओके, स्टेटमेंट अब, हाँ अब 86 में डाउट पूछा गया है कि बी, व्हाई बी इज रॉन्ग। यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यूनियन लेजिस्लेचर में क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ओके, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट। फेडरल में क्या, फेडरल का मीनिंग क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, और जो स्टेटमेंट टू है वो क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, या फिर ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो उसकी बात कर रहा है, वो फेडरलिज्म की बात नहीं कर रहा है। ओके, स्टेटमेंट जो भी है इसलिए वो रॉन्ग है, ये याद रखना। इसी तरीके से स्टेटमेंट से, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। ओके, जरूरी नहीं है ये, मतलब मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स रहना, मतलब फेडरल फीचर, मतलब ऐसा इंटीग्रेट क्या बोलते हैं उसको, बेसिक फेडरल फीचर नहीं है ये। ओके, ठीक है। और डी जो हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये क्या है, ये मतलब पार्लियामेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। ओके, पार्लियामेंट के पावर के ऊपर, इसको लिमिटेड गवर्नमेंट कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं। ओके, बट इट इज नॉट अ फेडरल फीचर, याद रखिए। अपने लक्ष्मीकांत में एक पूरा चैप्टर ही दिया गया है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर और एक चैप्टर है यूनिटरी और पार्लियामेंट्री फीचर्स, उसको अच्छे से पढ़ लो, एक क्वेश्चन वहां से आता है। ओके, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। आपको मैं एक चीज पूछता हूँ, अब जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये बोला गया है हमको, फेडरल फीचर है। ओके, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी ये कौन सा फीचर है, फेडरल है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है, यूनिटरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्योंकि आपका जो केसेस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, उसका अपील सुप्रीम ये हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से अपील क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो इंटीग्रेटेड है। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का अगर स्टेट लॉज है तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टेट हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। यूनियन लॉज है तो वहां पर जाएगा। ठीक है, अब देखो 88, ये जुडिशरी पे क्वेश्चन है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह चैप्टर रीड किए होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा रिटायर्ड जज, एड होक जज, एडिशनल जज। ओके, तो वो कंटेक्स्ट में पूछा गया, a retired judge can be of the Supreme Court can be called back to the seat and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of President। सही है। ओके, रिटायर्ड जज, और इसी तरीके से एक रहता है एडिशनल जज, वो डायरेक्ट सीजे अपॉइंट कर सकता है विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एक रहता है एड होक जज, एड होक चीफ जस्टिस। अगर सीजे आपका बीमार होगा तो तब सीजीआई बीमार है तो उसकी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए दूसरे कोई जज को अपॉइंट किया जाता है एज अ सीजीआई टेम्पररी पीरियड, वो करता है प्रेसिडेंट, क्योंकि सीजीआई ऑफिस में नहीं। तो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। रिव्यू, पावर टू रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। ओके, अब देखो, अब इसके लिए जो न्यूज 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अच्छा सर, आ गए। ओके, बैक टू द सेशन। हाँ, 89 हम देख रहे थे। ओके, with reference to India, consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है। A citizen by birth only can become head of state। ऐसा नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई भी चले। उसको कैसे याद रखेंगे, 5 टाइप से आप इंडिया का सिटीजन बन सकते हो। ओके, ये आरपीए में दिया है, आरपीए नहीं, कौन सा है, सिटीजनशिप एक्ट
1955 उसमें दिया गया है। उसका निमोनिक है ब्रिंड, BRIND, ब्रिंड। बी से बाय बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, आई से इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ओके, एन से नेचुरलाइजेशन, डी से बाय डिसेंट। हम जो है बाय बर्थ है, ओके। जो इंडियन ओरिजिन पीपल रहते हैं वो बाय डिसेंट से बन सकते हैं। कोई फॉरेन में गए वहीं सेटल हो गया, अब इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं तो डिसेंट से। बाय रजिस्ट्रेशन तो इंडियन डिसेंट वाले भी बन सकते हैं, या फिर कोई पर्सन इंडियन, उसका स्पाउस इंडियन है, मतलब वाइफ और हस्बैंड, तो यहाँ पर 7 ईयर का क्लॉज है, 7 ईयर आपको इंडिया में रहना होगा, ओके। हाँ, रजिस्ट्रेशन से आप बन सकते हैं इंडियन। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कोई टेरिटरी इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया तो वो बन जाएगा। बाय नेचुरलाइजेशन, यहाँ पे शायद कुछ 11 ईयर्स का क्लॉज है, 11 ईयर आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। अब इसके लिए जरूरी नहीं आप इंडियन ओरिजिन ही रहना चाहिए या फिर इंडिया के स्पाउस से आप मैरी करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। और बाय डिसेंट से तो इंडियन वो हो सकता है, ओके। तो ये चीज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखो, which of the following factor constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? ओके, लिबर्टी फ्रीडम है तो कब सेफगार्ड होता, जब वहां पे चेक्स एंड बैलेंस रहते, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है, ओके। मतलब जुडिशरी का अपना डोमेन है, फिर एग्जीक्यूटिव का अपना डोमेन है, और लेजिस्लेचर का अपना डोमेन है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं, कोई भी सॉवरेन नहीं है। तो इससे क्या होगा, चेक्स एंड बैलेंस रहता है, तो सिटीजन का लिबर्टी प्रोटेक्ट होता है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा, कमिटेड जुडिशरी, पर कमिटेड जुडिशरी विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फेवर वाली जुडिशरी की बात करें, हाँ, निगेटिव कंटेक्स्ट याद रखना। एक हम पढ़ते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, वो क्या रहता है, वो शायद पॉजिटिव टर्म है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड मतलब इंटीग्रेटेड वगैरह, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, हाँ, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वो पॉजिटिव टर्म, उसको याद, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91, यानी कि कमिटेड टू पीपल भी हो सकता है ना। कमिटेड देखो जुडिशरी, अब कॉमन जो यूज होता है कॉमन कंटेक्स्ट में, कमिटेड जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव को फेवर करती है, गवर्नमेंट को ऑफ द डे को फेवर करती है, उसको कमिटेड जुडिशियरी कहते हैं, ओके। तो अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करना, अगर एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है, पॉजिटिव के नेगेटिव, आप ए और डी को कंपेयर करो, डी भी सही है ना, तो ए और डी में रिस्क किस में कम है, डी में कम है ना। तो ऐसा देखो, याद रखो, एक से ज्यादा भी करेक्ट आंसर रह सकते हैं, पर रिस्क किसमें कम है वो देखना है, मतलब ज्यादा राइट किसमें रहने के चांस है, तो उस पे मतलब अपना दाव खेलो, डी आई, ओके। इसके बाद देखो 91, हाँ, विच ऑफ द अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। देखो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये हो सकता है दूसरे पार्ट्स में भी हो, पर डायरेक्टली कहां पर मेंशन है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, ऐसा डायरेक्टली आर्टिकल 39 में मेंशन, ओके। तो 39 का वायलेट हो रहा है, 39 है डीपीएसपी, ऐसे पूछे गए क्वेश्चन। एक बार पूछा गया राइट टू वेलफेयर, ये कहां पर मेंशन है, तो हाँ वेलफेयर, तो प्रियम्बल में है, फंडामेंटल राइट्स में, ड्यूटीज में है, डीपीएसपी डायरेक्टली कहां पर मेंशन है, डीपीएसपी में 38 आर्टिकल। फिर इसी तरीके से एक बार पूछा गया कि इकोनॉमिक जस्टिस कहां पर मेंशन किया गया, अब था देखो आंसर ऑप्शन क्या थे, प्रियम्बल था, फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल एक था डीपीएसपी और दूसरा था प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी दोनों में भी दिया इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो ये टर्म्स वगैरह हमको पता रहना चाहिए, ओके। अब देखो 91 और 92 रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, आर्टिकल 300A, तो ये है लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, बहुत आसान था, मेरा गलत हो गया कुछ, एनी पर्सन 300A, ओके। 19 उसमें दिया गया है कि मतलब स्टेट देखो कैन नॉट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ऐसा कुछ दिया है, तो आप सिटीजन नहीं, एनी पर्सन, ओके। अगर आपको पूछा जाए राइट टू प्रॉपर्टी,
और इज नीचे दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट, फंडामेंटल राइट और ए बोथ ए एंड बी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसलिए क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। और लीगल राइट इसलिए कि प्रोटेक्टेड बाय लॉ है, इसके लिए लॉ भी लाए गए। आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट, बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सी फंडामेंटल राइट, डी बोथ ए एंड बी। राइट टू वोट, हाँ राइट टू वोट जो बोला गया है ना, देखो इसमें भी वो टाइम पे कंट्रोवर्सी हो गई थी। एज पर एनसीईआरटी इट इज लीगल राइट, एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर यूपीएससी ने लीगल राइट दिया। ओके, क्योंकि आप डिप्राइव कर सकते हो राइट टू वोट कब, जैसा कोई एक पर्सन है प्रिजन में है तो उसको राइट टू वोट नहीं है, याद रखना, प्रिजन में आप वोटिंग की डिमांड नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं रहता, लीगल तभी रहेगा जब उसके लिए कोई लॉ वगैरह सेपरेट इनैक्ट किया गया या फिर प्रोटेक्टेड बाय लॉ वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, ये चीज याद। इसके बाद देखो 93, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950। ये कॉमन क्वेश्चन है, प्रियम्बल में एक बार ही एडिशन की गई है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सोशलिस्ट, सेक्युलर सोशलिस्ट, ये दो वर्ड ऐड किए। इसका मतलब उससे पहले क्या था, इंडिया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोशलिस्ट सेक्युलर नहीं था, याद रखना। आगे बढ़ते 94, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ये कई बार पूछा गया पीवाई और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट विच इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस है, आर्टिकल 13, कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ बना रहा है विच इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट देन इट विल बी नल एंड वॉइड। सो ये क्या है, लिमिटेशंस है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, याद है, बार बार पूछ। 95, विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो कोई, ये ट्राइब्स है। हल्बी हो कहाँ पे, छोटा नागपुर में, हल्बी शायद कर्नाटक में ही कुछ है, हल्बी अच्छा महाराष्ट्र में वगैरह कुछ होंगे। ओके, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस है। ओके, याद रखो। देखो ट्राइब पे क्वेश्चन एक आना ही है, इससे पहले एक बार पीवीटी जिस पे पूछा गया था, जो ट्राइबल न्यूज में है जनरली वो जीआई टैग के कंटेक्स्ट में न्यूज में रहते हैं। ट्राइबल के जैसा कलबेलिया डांस है, या फिर वो जुडीमा राइस का भी जीआई टैग मिला, आसाम में दिमासा ट्राइब है। ओके, फिर इसी तरीके से अभी म्यांमार में कूप हो गया तो बहुत सारे ट्राइबल लोग वहां से इंडिया में आ गए, कोई शायद जो ट्राइब थी, नाम याद नहीं आ रहा। फिर वेस्ट बंगाल में एक ट्राइब है मातुआ ट्राइब, वो न्यूज में थी। ओके, इसको याद रखना। खासा, दो ट्राइब है, खासा है, खासी है। खासा ट्राइब है उत्तराखंड और खासी है मेघालय। खासी है मैट्रियार्कल, मैट्रिलोकल भी कह सकते। ओके, मैट्रिलोकल मतलब शादी के बाद जो कपल है वो मैटरनल पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, पैट्रिलोकल में फादर के पास जाते हैं, मतलब ब्राइड ग्रूम के फैमिली के पास, याद रखो। इसके बाद अब आगे आते हैं 96, विथ रिस्पेक्ट टू भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। 3 स्टेटमेंट है। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर द टाइटल अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 18(1) क्या है कि ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अगर टाइटल्स रहते तो वो अबॉलिश किए जाते, तो इनको एक्सक्लूड किया गया टाइटल के डेफिनेशन, पद्म भूषण वगैरह ये सारा याद रखो। दूसरी बात, पद्मा अवार्ड्स which were instituted in the year 1954 were suspended only once. ये थोड़ा ट्रिकी है, देखो इसको सस्पेंडेड किया गया 78 में, 79 में, अगेन 93 to 97, मल्टीपल टाइम्स इसको सस्पेंड किया गया है। ओके, और नॉट करेक्ट क्वेश्चन, ये भी ध्यान, हाँ नीचे नॉट करेक्ट है। थर्ड क्या है, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्डीज इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन पर्टिकुलर, 5 नहीं है 3। ओके, ये याद रखो।
अभी रिसेंट में जिनको मिला है ना वो याद रखना। रिसेंट में किसको मिला? भूपेन हजारिका, नाना नानाजी देशमुख, ओके, प्रणब मुखर्जी, सचिन तेंदुलकर, भीमसेन जोशी, उससे पहले मिला। ओके, एक पर्सन है जिनको भारत रत्न मिला है और पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, जिसको निशान इम्तियाज कहते हैं। तो इसका नाम, हु वाज दैट पर्सन? रामदेव बाबा, खान बहादुर खान। भारत रत्न मिला, वो नहीं मिला, सॉरी, वो मिला होगा पर इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन की हम बात कर रहे हैं। मे बी बट ही वाज नॉट इंडियन सिटीजन। मोरारजी देसाई, याद रखो, मोरारजी देसाई वाज द पर्सन हु हैज गॉट this Bharat Ratna as well as Nishan Imtiaz. One person is there, Dilip Kumar Yusuf Khan. He got Nishan Imtiaz, highest civilian award of Pakistan, but not Bharat Ratna. Okay, Yusuf Dilip Kumar, who died recently. Next, 97. There are two statements are given. Okay. यहाँ पर ये हमारा रेगुलर क्वेश्चन है, कोई एक नया बॉडी बोलेगा और जो लॉन्च किया गया है ना वहां पे गड़बड़ करेगा। तो यहाँ पर सेम, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड अर्बन डे फाउंडेशन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज अ 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो यहाँ पर अर्बन सही है, लेकिन साथ में जो पार्टनर है ना FAO है, ओके, सो वो रॉन्ग होता है। स्टेटमेंट 2 जनरल है, सही है, रीड कर लो बस स्टेटमेंट 2। अर्बन फॉरेस्ट, तो आंसर आएगा 1 इज नॉट करेक्ट, 2 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देख रहे थे आई थिंक 98। हाँ, क्वेश्चन नंबर 98 रीड करो। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, बस चेक करो कि एलिमिनेट कर सकते हो या फिर कुछ स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट स्टेटमेंट, टाइगर वुड्स फर्स्ट विनर, रह सकता है नहीं रह सकता हमको पता नहीं। यहाँ पर ऑप्शंस भी देखो, ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, अगर एक एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 2 देखो, द अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला 1 प्लेयर्स सो फार, और स्टेटमेंट 3 दे रहा है रॉजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर्ड टू अदर्स। 2 और 3 कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तब इसमें से क्या पॉसिबिलिटीज आती है, कौन सा सही रह सकता है दोनों में? मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम कौन सा दिख रहा है दोनों में? देखो, फॉर्मूला 1 उतना ज्यादा वेल नोन स्पोर्ट्स नहीं है, ओके, और एक उससे ज्यादा फेमस है टेनिस। तो रॉजर फेडरर कंसिस्टेंसी उसने परफॉर्म भी किया है और ज्यादा लेवल पे उसको खेला भी जाता है, तो हो सकता है कि रॉजर फेडरर को मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिला। तो मतलब स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग रहेगा, 2 को बस एलिमिनेट कर दो। ओके, तो आपका आंसर आ जाएंगे 1 एंड। अब ये जो क्वेश्चंस है लास्ट राउंड में करना है, थर्ड राउंड में एकदम आखिरी में जब 5 मिनट बचते हैं ना, तब इसको 2-3 बार रीड करके इसको टिक कर देना। ओके, यहाँ पर बस आपका पढ़ना है, और 4-5 ऐसे किएंगे तो 1-2 गलत भी हो जाएंगे, लेकिन 2-3 सही भी हो जाते। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर क्या पूछा, 32nd समर ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक हुए थे, तो सॉरी टोक्यो में हुआ था, हाँ, तो पूछा गया ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक इज न्यू वर्ल्ड। तो देखो ये मोटो पे उसने थोड़ा सा हमको ट्विस्ट किया है, मोटो दूसरा था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ये उसका मोटो था। और जो स्पोर्ट्स थे देखो, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स, ये सही था, फर्स्ट टाइम इसको इंक्लूड किया गया था। वो जो स्केटिंग वगैरह जो था ना,
वो एक बहुत ही एक छोटी एंगर गर्ल, एक छोटी लड़की थी, उसने गोल्ड जीता था, वो काफी न्यूज में थी, न्यूज में भी आ रहा था, तो इसलिए ये थोड़ा सा है। जनरली टू लाइनर का एक सिंपल फॉर्मूला रखो, एक सही रहता है, एक रॉन्ग रहता है। जो जनरल है जिसमें एक्सट्रीम नहीं उसको सही कर दो, जो ऑर्डर है उसको रॉन्ग कर दो। ओके, ये कब है? जब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं है, तो ये अप्रोच हम ले सकते हैं। एक सही रहता है, एक गलत रहता है। लास्ट क्वेश्चन ऑन क्रिकेट, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। The finalists were decided by the number of matches they won. नंबर ऑफ मैचेस नहीं था, बट नंबर ऑफ परसेंटेज, मतलब स्कोर, परसेंटेज स्कोर। सपोज मैं 4 ही मैच खेला, पर मैं चारों के 4 जीत लिया, ओके, तो मेरा परसेंटेज बहुत ज्यादा रहेगा, तो मैं विनर रहूंगा। कंपेयर टू 2 कंट्री जिसने मैचेस बहुत ज्यादा खेले और ज्यादा जीते भी हैं, पर परसेंटेज में कम है मुझसे। ओके, तो पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट सिस्टम, पॉइंट मतलब परसेंटेज। Second, New Zealand was ranked ahead of England because it won more matches than England. न्यूजीलैंड रैंकिंग में ahead था इंग्लैंड के, बट नॉट ड्यू टू मोर मैचेस, मैचेस तो कम ही जीता था, बट परसेंटेज में ज्यादा था। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, न्यूजीलैंड ने 7 जीता था, लॉस 4 थे, परसेंटेज अराउंड 70 होता। इंग्लैंड ने 11 जीता था, लॉस 7 है, परसेंटेज में 61। तो रैंकिंग जो थी ये बेस्ड ऑन परसेंटेज थी, परसेंटेज पॉइंट्स, नॉट ऑन नंबर ऑफ मैचेस वॉन। और किसने जीता था ये ट्रॉफी किसने जीती थी? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जीता था। और हराया किसको था उसने फाइनल में? इंडिया को हराया था। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया फाइनल हुआ था। हाँ, वैसे इंडिया का भी बहुत ज्यादा था परसेंटेज, बट फाइनल में इंडिया हार जाता है। ओके, तो इंडिया लॉस्ट, याद रखो। तो यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस। इसको रीड करो, फिर से पढ़ लो, और वो यूट्यूब पे कल लिंक में शेयर भी किया था ग्रुप पर, वहां पर वो अपलोडेड है, वहां से आप इसको फिर से देखना है तो देख लीजिए। ओके, चलो। हाँ, राउंड की टाइमिंग पहले 100 क्वेश्चन का जनरल रहता है कि 1 आवर 15 मिनट में कंप्लीट करना है। हाँ, ज्यादा ज्यादा 1 आवर 20 मिनट। बाद में इसके बाद जो सेकंड आवर रहता है, सेकंड राउंड रहता है, वो अराउंड 30 मिनट, 25 टू 30 मिनट। नहीं, मार्किंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के बाद ही, मतलब 1 to 50 हो गए ना, फर्स्ट राउंड ही चल रहा है, तो 1 to 50 में सॉल्व कर लिया फर्स्ट राउंड वाले, तभी मैं मार्क कर लेता हूँ 1 to 50 एक साथ, फिर 51 to 100 उसके मार्किंग। तो ऐसा कुछ 1 आवर 15 मिनट हो जाता है मार्किंग के साथ वो, या फिर 1 आवर 20 मिनट। फिर बचे हुए हाफ आवर में सेकंड राउंड, और लास्ट 10 मिनट में थर्ड राउंड, ऐसा। लेकिन इसमें देखो क्या करना है, फर्स्ट जो हाफ आवर है वहां पे हमारा पावर प्ले रहना चाहिए, पेपर आते ही स्टार्ट कर दो। हाँ, मिनिमम 40 to 45 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट हाफ आवर में होना चाहिए। सेकंड हाफ आवर में अगेन 40-45, तो कुल 80 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट हाफ आवर में। फिर बचे हुए 10 मिनट में 20 क्वेश्चन होंगे, फिर बचे हुए 10 मिनट में मार्किंग, तो सपोज बबलिंग को 10 मिनट, तो 1 आवर 20 मिनट में हो जाता है इस तरीके से। हाँ, पहले 30 मिनट, उसमें स्लो नहीं होना, जनरली हम बहुत स्लो स्टार्ट करते हैं, वैसा नहीं करते, फास्ट वहां से रेट छोड़ लेने का, बाद में सेकंड रीड में और अच्छे से तुम टैकल कर सकते। ओके, और कोई डाउट है यहाँ पर जो ऑनलाइन बच्चे हैं?